Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 22nd of August 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. I have also started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static parts related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you need to visit the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. If you want to watch Hindu analysis, then you can watch that too on this channel. I am not feeling well today, so there could be some incoherence in this video. Here the first news is a mystery dwarfing disease hits paddy crop in Punjab and Haryana. आप ये यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं हेल्दी वैरायटी का और स्टंटेड वैरायटी का। अब ये क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न पहले ये बताया जा रहा था कि जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन जिंक डेफिशिएंसी की वजह से ये नहीं है, ये क्लियर हो चुका है। तो अब बेसिकली हमारे पास इसका कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। Even as overall acreage under rice has fallen by nearly 3.1 million hectares during the Kharif cropping season over the last year, तो वैसे भी यहाँ पर पैडी कल्टीवेशन के अंडर एरिया कम हुआ है और उसके बाद हमें ये ड्वार्फिंग डिजीज़ देखने को मिल रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर राइस प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। And it's emanating from the country's Green Revolution Bowl of Punjab and Haryana. So that is a cause of worry. Have reported a mystery dwarfing disease of paddy that agricultural scientists are still to identify. तो अभी बेसिकली नहीं पता है कि ये किस वजह से हो रहा है. In the first 30 to 35 days there was uniform growth of all plants, but after that some stopped while the others continued growing. तो पहले ये कहा गया था कि ये जिंक डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में ये क्लियर हो गया कि ये जिंक डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रहा है. They initially attributed it to zinc deficiency, but if it was that the cause, it would have affected all plants in the field having such deficiency. तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टंटिंग हो रही है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से तो नहीं हो रही है. अब ये सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर साइंटिस्ट को रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका क्या रीज़न है. नेक्स्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग CSIR. तो CSIR की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर बनी थी डॉक्टर एन कलाई सेल्वी. द अपॉइंटमेंट अर्लियर दिस मंथ ऑफ डॉक्टर एन कलाई सेल्वी एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द 80-year-old CSIR. तो CSIR के बारे में आपको बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए. While overall data show an upward trend, women researchers जो engineering और tech में है वो basically उनका percentage कम है and they are fewer than in natural sciences, health and agriculture. तो यहाँ पर women का proportion बढ़ा है लेकिन उस rate से नहीं बढ़ा है. तो official data show the participation of women in science research has been generally increasing over the past 2 decades in the country, लेकिन post doctoral category में यहाँ पर women का representation नहीं बढ़ रहा है. That is the problem. The increase in women's participation especially in research is due to a combination of government programs and natural progression. पर्सनली यहाँ पर CSIR की जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस डिस्कस किए हैं. फॉर एग्जांपल इन न्यूमरस CSIR लैब्स यहाँ पर क्रैश फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, पेरेंटल एटीट्यूड नहीं होता है कि वो गर्ल्स को पुश करें टुवर्ड्स साइंस, जिसमें हमें अब शिफ्ट देखने को मिल रहा है. रिजल्ट्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019 शोड अ 53% एंड 55% ऑफ women इन साइंस एजुकेशन एट द बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल रिस्पेक्टिवली. तो ऑफकोर्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं हुआ है. बट एट डॉक्टोरल लेवल जो विमेन ग्रेजुएट्स है वो यहाँ पर 44% है. अगर हम मैन से कंपेयर करें तो वो है 56%. तो वी हैव ऑब्जर्व दैट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज हेल्दी टिल द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, लेकिन पोस्ट डॉक्टोरल लेवल में हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलता है और पोस्ट डॉक्टोरल लेवल पर ही यहाँ पर ज़्यादातर रिसर्च होते हैं. तो इवन दो दिस टू हैज़ इंक्रीज, इट इज़ स्टिल फार लेस देन द 30% ग्लोबल एवरेज. तो इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. अब हम चलते हैं आगे. फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. बेसिकली ये जो फर्स्ट न्यूज़ है तो आपको परोल और फरलो के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परोल एंड फरलो, क्योंकि ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है तो ये रिपीट भी हो सकता है कि परोल और फरलो के बीच में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट यहाँ पर जो पुतिन के ब्रेन है उनकी डॉटर की किलिंग हो गई है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. तो बेसिकली एज सच ये पुतिन के ब्रेन नहीं है, इनकी एक बुक है जो कि यहाँ पर विस्तारवाद को इंक्रीज़ करती है और यहाँ पर जो पुतिन है वो उसी को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पर पुतिन का ब्रेन कहा गया है. हमारे लिए सच ही इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. अब ये सोचा जा रहा है कि ये अटैक किसने करवाया, USA ने करवाया, यूक्रेन ने करवाया या फिर रशिया में ही किसी ने करवाया है ये अटैक.
इंडिया फेसेस चैलेंज टू इंश्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड, जयशंकर इन ब्राज़ील। तो इंडिया फेसेस अ चैलेंज टू इंश्योर दैट जो हमारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पर वेल प्रोटेक्टेड रहें। अगर हमें यहाँ पर रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा है तो हम यहाँ पर रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लें। तो इसके लिए डिप्लोमेसी सबसे ज़्यादा काम आती है कि हम यहाँ पर यूएसए से और रशिया से दोनों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करें। वी हैव अ चैलेंज विच इज़ वी हैव टू इंश्योर थ्रू डिप्लोमेसी। तो इस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी इज़ द ओनली सोल्यूशन। फिर यहाँ पर चाइना के रिगार्डिंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना है जो चाइना है उसने बायलेटरल टाइज को वॉयलेट किया है। चाइना, जयशंकर सेड, इट हैज़ डिसरिगार्डेड बॉर्डर पैक्ट्स विद इंडिया एंड दिस हैज़ कास्ट अ शेडो ऑन बायलेटरल टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। और लास्टिंग रिलेशनशिप तभी हो सकती है चाइना और इंडिया के बीच में अगर यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर दो रिवर की बात की गई है, सुबर्णरेखा एंड बैतरनी। तो इन रिवर्स के बारे में आप बेसिक फैक्ट्स को रीड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। क्लाउड बर्स्ट की क्या डेफिनेशन होती है? अ क्लाउड बर्स्ट इज द लोकलाइज्ड बट इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी। तो शॉर्ट स्पेल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है स्पेशली इन द हिली रीजन्स। नॉट ऑल इंस्टांसेस ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल की वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। तो रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर अ रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया, उसको ही यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के इवेंट की तरह क्लासीफाई किया जाता है। तो रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर और मोर इन एन आवर ओवर अ रफली 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर एरिया इज क्लासिफाइड एज अ क्लाउड बर्स्ट इवेंट। ये जो नेक्स्ट है तो बेसिकली ये अलेक्जेंडर ड्यूगन और उनकी डॉटर के बारे में है जिनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर यूएस जॉब्स रिसेशन पैराडॉक्स। तो यूएस में रिसेशन आ रखा है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ये पैराडॉक्स क्यों है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। यूएस जीडीपी फेल 1.6% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 फॉलोड बाई अ 0.9% फॉल इन द सेकेंड क्वार्टर। तो बेसिकली यहाँ पर जीडीपी गिर रही है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया है कि जीडीपी गिर रही है लेकिन उसके बाद भी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। So over the past 6 months, jobs have been created in the US at the rate of nearly 500,000 a month. There is no historical precedent for a recessionary economy to produce 5,28,000 jobs in a month. तो US में जो employment rate है वो यहाँ पर 3.5% है, that is the lowest since 1970. अभी पैराडॉक्स किस रीज़न की वजह से है तो यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए हैं। A recession is generally understood to follow an increase of interest rate by the US Federal Reserve. तो US Federal Reserve ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट को इंक्रीज़ किया है जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो डैम्पन हो पाए और डिमांड भी यहाँ पर डैम्पन हो पाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जॉब्स लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टिपिकली मूव इन टेंडम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब डाउन टर्न होता है, जब बिजनेसेस को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है क्योंकि डिमांड नहीं होती है, तो बिजनेसेस वर्कर्स को यहाँ पर ले ऑफ करते हैं और जब वर्कर्स को यहाँ पर ले ऑफ किया जाता है तो और ज़्यादा डिमांड कम हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर बिजनेसेस और ज़्यादा वर्कर्स को ले ऑफ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो व्हेन देयर इज अ डाउन टर्न, बिजनेसेस ले ऑफ वर्कर्स, एज अ रिजल्ट पीपल स्पेंड लेस मनी विच इन टर्न डैम्पन्स डिमांड एंड लोअर्स प्रॉफिट्स फॉर बिजनेसेस। तो इसके बाद वो और ज़्यादा वर्कर्स को ले ऑफ करते हैं जिसकी वजह से डिमांड और ज़्यादा कम होती है और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। अब लेबर मार्केट पैराडॉक्स क्यों है? तो इकोनॉमिक आउटपुट इन द यूएस इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन लाइन विद द फेड्स रेट टाइटनिंग बट कंपनीज आर स्टिल हायरिंग इन ड्रोव्स एंड मेनी जॉब्स स्पेशली इन द पैंडेमिक हिट सर्विस सेक्टर रिमेन अनफिल्ड। अब हम आगे चलते हैं। फेड हाइक्स इम्पैक्ट एल्सवेयर। तो यहाँ पर जॉब्स के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व टाइटनिंग कर रही है तो इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? व्हेन द फेड रेजेस इट्स पॉलिसी रेट, द डिफरेंस बिटवीन जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर यूएस में है और जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में है उसमें डिफरेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं रह जाता है फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो व्हेन द फेड रेजेस इट्स पॉलिसी रेट्स, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द टू कंट्रीज नैरोज, दस मेकिंग कंट्रीज सच एज इंडिया लेस अट्रैक्टिव फॉर द करेंसी कैरी ट्रेड। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया से एफपीआई हैं वो बाहर जाने लगते हैं। एवरीवन इज बिल्डिंग एन इन्वेंट्री इन द यूएस इन पर्टिकुलर, दिस बिकेम रियली बैड। अब यूएस में क्या किया गया था, जब कोविड था तो लोगों को बहुत ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र किया गया था। अब जब लोगों को कैश ट्रांसफ़र किया गया था तो उसके बाद यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। अब डिमांड तो इंक्रीज़ हुई लेकिन यूएस के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया टू अदर कंट्रीज़ लाइक चाइना, जापान एंड इंडिया। और जब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, जब ये वापस से यहाँ पर यूएस के पोर्ट पर आता है तब यूएसए को रियलाइज़ होता है कि वो
बेसिकली इतनी उनके पास इन्वेंट्री नहीं है। तो द डिमांड वेंट ओवर टू चाइना, जापान, इंडिया, बांग्लादेश एंड व्हेन द गुड्स स्टार्टेड हिटिंग द यूएस पोर्ट्स दे रियलाइज दीज डिडंट हैव द कैपेसिटी, और उसकी वजह से हमें यूएस में वेज प्राइस स्पाइरल देखने को मिलता है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर नेस्डेक मेंशन है एंड S&P 500 मेंशन है। तो S&P 500 क्या होता है, तो स्टॉक की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस होता है उसका इंडेक्स होता है S&P 500, और नेस्डेक क्या है, तो नेस्डेक एक यहाँ पर मार्केट प्लेस है जहाँ पर स्टॉक्स को खरीदा और बेचा जाता है। तो S&P 500 ये प्रीलिम्स में आ चुका है कि S&P 500 क्या है। नेक्स्ट है फॉरएवर केमिकल्स, द रिस्क दे पोज एंड अ न्यू वे टू डिस्ट्रॉय देम। तो PFAS होते क्या है, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, जिनको यहाँ पर PFAS कहते हैं, इनको फॉरएवर केमिकल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं। तो PFAS आर मैन मेड केमिकल्स, जिनको कि यहाँ पर नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ किया जाता है, वाटर रेपेलेंट क्लोथिंग में यूज़ किया जाता है, स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक्स में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये डिग्रेड नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन डेंटल फ्लॉस थ्रेड एंड इन फूड रैपर्स यूज्ड इन रेस्टोरेंट्स। PFAS can contaminate soil, water and during their production and use. Since most PFAS do not break down, इसकी वजह से ये हमेशा environment रहते हैं for long periods of time. तो factories basically इसको एयर में रिलीज़ कर देती हैं, तो फैक्ट्रीज दैट यूज़ दैम इन मैन्युफैक्चरिंग रिलीज दैम इन द एयर, और बाकी यहाँ पर जो है वो इनको डंप कर देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर रिवर्स और ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। सम ऑफ दीज PFAS ऑल्सो बिल्ड अप इनसाइड पीपल, और यहाँ पर अगर पीपल बहुत टाइम तक इसको लेकर एक्सपोज रहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज्ड फर्टिलिटी, डेवलपमेंटल इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, इंटरफेरेंस विद बॉडी हार्मोन्स, इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सम काइंड्स ऑफ कैंसर। गेटिंग रेड ऑफ PFAS, तो कोई अभी यहाँ पर नोन मेथड नहीं है कि PFAS को कैसे रिमूव किया जाए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ पर एक मेथड है। फॉर एग्जाम्पल वन वे टू डू दिस वुड बी टू यूज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम विद एक्टिवेटेड कार्बन। तो एक्टिवेटेड कार्बन विल नीड टू बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड रेगुलरली। और एक मेथड ये है, द टीम फर्स्ट प्लेस्ड अ PFA कंपाउंड इन अ सॉल्वेंट कॉल्ड DMSO, जो कि है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। फिर इसको मिक्स किया गया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर साइंटिस्ट ने ये पाया कि इसकी वजह से यहाँ पर जो PFA हैं वो यहाँ पर डिग्रेड हो रहे हैं। द PFA कंपाउंड बिगेन टू डिग्रेड। लेकिन ये जो मेथड है ये सारे PFAS के साथ काम नहीं करता है। हाउएवर दिस मेथड डजंट वर्क फॉर ऑल PFAS एंड ओनली फॉर सर्टेन PFAS सबसेट्स। अब हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बॉर्डर टॉक्स चल रहे हैं असम और मेघालय के बीच में, तो अभी आउटकम जब आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिटी ऑफ नीतीश कुमार, तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है करंट क्राइसिस, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्कॉम्स यहाँ पर कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्किस बानो का केस है कि बिल्किस बानो केस में रेमिशन नहीं देना चाहिए था, और ये यहाँ पर इनजस्टिस है, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। CUET है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें यहाँ पर ये देखा गया है कि बहुत जगह एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेस। फिर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है टू मैनी बॉल्स इन कोर्ट, तो यहाँ पर फीफा ने AIFF पर बैन लगा दिया है क्योंकि गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, तो इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है फॉर अमृतकाल इन एग्रीकल्चर, ये हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो फेमस स्लोगन जो कि यहाँ पर लेट लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान, एंड विच वॉज एक्सटेंडेड बाई अटल बिहारी वाजपेयी टू इंक्लूड जय विज्ञान, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एक्सटेंड कर दिया टू जय अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है इनोवेशन। तो लेट अस फोकस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सी व्हाट आर फार्मर्स एंड एग्री साइंटिस्ट हैव अचीव्ड इन द लास्ट 75 ईयर्स। तो हमने क्या अचीव किया है और हमें क्या करने की ज़रूरत है 2047 तक। तो 2047 तक हमारे पास वेल फेड इंडिया होना चाहिए विद जीरो हंगर, कोई मैल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट होने चाहिए एंड हाई इनकम्स फॉर आर फार्मर्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 पे, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 340 मिलियन, और ये पॉपुलेशन 4 टाइम्स ग्रो हुई है, और नेक्स्ट ईयर तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर जाएगी। 2050 में जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो होगी 1.66 बिलियन एज पर द लेटेस्ट UN पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो बिगेस्ट चैलेंज ये है कि इतनी सारी पॉपुलेशन को आप फीड कैसे करोगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि आने वाले टाइम में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो लोग बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड की डिमांड करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ पेट भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। So the biggest challenge will be feeding a country whose per capita income still hovers around $2,300. The per capita income is likely to grow between 5 to 6% under normal conditions. तो as they rise from low income levels, तो यहाँ पर लोग डिमांड करेंगे safe and nutritious food. तो इसके लिए हमें अपनी एग्री पॉलिसीज़ को अलाइन करने की ज़रूरत है इस डिमांड पैटर्न को मीट करने के लिए।
तो बेसिकली जो फिशरीज़ और पोल्ट्री है उसमें हमें यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो सरकार की एमएसपी पॉलिसीज़ है उसकी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर सीरियल्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ द मोस्ट इन सीरियल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो किसी और क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो वाइल दोज सब सेक्टर्स दैट रिलाई ऑन मार्केट फोर्सेस नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट, वो अभी भी बेटर परफॉर्म करते हैं। तो ऑथर ने ये कहा है कि जहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रहा है वो बेसिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। बट इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स वी नीड टू गो बियॉन्ड जस्ट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पर 5 डायमेंशंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो पहले यहाँ पर ऑथर ने 3 डायमेंशंस के ऊपर फोकस किया है, जो कि है प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड कंजम्पशन। और यहाँ पर 2 नई डायमेंशंस को ऐड करने की ज़रूरत है, जो कि है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल आउटकम्स। तो यहाँ पर 2 और डायमेंशंस के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज़ करना है। तो वी नो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करने में, क्योंकि हम एक शिप टू माउथ इकॉनमी है। यूएस हमें PL 480 के अंतर्गत अपना यहाँ पर वीट प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन सर्वाइव कर पा रही थी। लेकिन आज हम यहाँ पर फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुके हैं ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के यहाँ पर कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी हुए। तो वी नीड टू अरेस्ट द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन आवर ग्राउंड वाटर टेबल, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ वेस्ट। इसके अलावा हमें अपनी सॉइल को रिजुविनेट करने की ज़रूरत है, स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, मीथेन एमिशंस को कम करने की ज़रूरत है। तो हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डेवलप कार्बन मार्केट्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो इंसेंटिवाइज्ड हों कि वो ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज़ हो। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर का डिजिटाइजेशन किया जा सकता है। हाउएवर मेकिंग द एग्री फूड सिस्टम वाइब्रेंट एंड कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब ये है कि हमें फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज़ करनी है। अगर हम देखें तो लैंड के फ्रैगमेंटेशन की वजह से यहाँ पर जो होल्डिंग साइज़ है वो 2.3 हेक्टेयर हुआ करता था 1970-71 में, जो कि कम हो चुका है 1.08 हेक्टेयर इन 2015-16। और सीरियल्स जो हैं बेसिकली उनकी प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज़ भी हो जाए तब भी वो यहाँ पर हाई इनकम फार्मर्स को नहीं दे सकते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस किया कि इनोवेशन अगर करना है तो सोलार को एज अ थर्ड क्रॉप यहाँ पर फील्ड्स में करने की ज़रूरत है। तो ऑन 1 acre ऑफ कल्टिवेटेड लैंड विच ग्रोज 2 crops a year, तो वन कैन हैव मोर देन 400 सोलर पैनल्स ट्रीज ऑफ 10 to 12 फीट इन हाइट। और इसकी वजह से यहाँ पर जो फार्मर की इनकम है उसमें एडिशन हो जाएगा 1 लाख पर एकड़ का। तो पायलट प्रोग्राम इन द नजफगढ़ केवी के एरिया रिवील्ड दैट फार्मर्स कुड अर्न एडिशनल इनकम ऑफ अप टू ₹1 लाख पर एकड़ व्हेन द कैपिटल कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड बाय द अनदर एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ने हर घर तिरंगा कैंपेन को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हर खेत में सौर ऊर्जा इसको भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। और यहाँ पर फार्मर्स को एक तरीके से पुश देने की ज़रूरत है कि वो सोलर पैनल्स अपने यहाँ पर लगाएं। अब हम चलते हैं आगे। ब्रोकन पिचर्स 100 ईयर्स अपार्ट, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जेलेंस्की वॉर्न्स ऑफ अगली विशियस अटैक। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है किंजल हाइपरसोनिक किंजल डैगर मिसाइल्स, जो कि रशिया की हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो किंजल मिसाइल्स आर पार्ट ऑफ एन एरे ऑफ न्यू हाइपरसोनिक वेपन्स जो रशिया का है। फिर यहाँ पर ज़ेपोरिज़िया, तो ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर यूक्रेन में है। और बाकी यहाँ पर खार्किव की बात की गई है, ये यूक्रेन का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। फिर यहाँ पर ज़ेपोरिज़िया की ही बात की गई है। अब हम चलते हैं आगे। पोलियो इन US, UK एंड इजराइल रिवील्स रेयर रिस्क ऑफ ओरल वैक्सीन। तो बेसिकली यहाँ पर जो ओरल वैक्सीन दी जाती है उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये जो वीकेंड वायरस है ये कभी कभी म्यूटेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ओरल वैक्सीन एट इशू यूज्ड सिंस 1988 कैन ऑल्सो कॉज पोलियो इन अबाउट 2 to 4 चिल्ड्रन पर 2 मिलियन डोजेज। एक्सट्रीमली रेयर केसेस में क्या होता है, ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन में वीकेंड वायरस यूज़ किया जाता है वो कभी कभी म्यूटेट हो जाता है इनटू अ मोर डेंजरस फॉर्म एंड स्पार्क आउटब्रेक्स, जो कि हमें ये आउटब्रेक्स यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में देखने को मिल रहे हैं। सिंस 2017 देयर हैव बीन, यहाँ पर जो वाइल्ड वायरस के केसेस हैं वो तो कम है, लेकिन ओरल वैक्सीन की वजह से जो म्यूटेशन हो गया है वीकेंड वायरस का, उसकी वजह से यहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो ओरल वैक्सीन से दूसरे टाइप ऑफ वैक्सीन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई मोगादिशु की। तो मोगादिशु सोमालिया की कैपिटल है। तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं बेसिकली कि कौन सा कंट्री न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था। नेक्स्ट जापान लुक्स टू डिप्लॉय इट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो जापान इज कंसिडरिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ 1000 लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स टू बूस्ट इट्स काउंटर अटैक कैपेबिलिटी अगेंस्ट चाइना। अब हम चलते हैं आगे। सिंगापुर टू रिपील लॉ ऑन सेक्स बिटवीन कंसेंटिंग मैन। तो जो सेक्स बिटवीन कंसेंटिंग मैन सिंगापुर में क्रिमिनलाइज था, तो बेसिकली उसको ही यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर सेड ऑन संडे दैट द गवर्नमेंट वुड रिपील द कंट्रीज कॉलोनियल एरा लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेक्स बिटवीन मैन, लेकिन अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस इलीगल ही रहेंगी।
अब हम चलते हैं आगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री अलेज वरीज ऑन यूपीआई चार्जेस। तो हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि आरबीआई ने एक पेपर रिलीज़ किया जिसमें आरबीआई ने ये कहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ फ़ी लगाई जा सकती है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आफ्टर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम आउट विद अ डिस्कशन पेपर लास्ट वीक ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ऐसा गवर्नमेंट कोई भी कंसिडरेशन नहीं करेगी कि कोई चार्जेस लगाए जाएंगे यूपीआई सर्विसेज पर। द आरबीआई हैड आस्क्ड स्टेक होल्डर्स इफ द मर्चेंट डिस्काउंट रेट अ फी पेड बाई मर्चेंट्स टू एक्वायरिंग बैंक्स, क्या उसको यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए वापस लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया कि उसको वापस नहीं लाया जाएगा। तो बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूपीआई ट्रांजैक्शन, और अगर एवरेज दिया जाए कि 800 रुपये की ट्रांजैक्शन होती है तो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आती है 2 रुपये की। तो इन इट्स डिस्कशन पेपर द रिजर्व बैंक हैज अप्रॉक्सीमेटेड दैट विद एन एवरेज वैल्यू ऑफ ₹800 फॉर अ मर्चेंट ट्रांजैक्शन, वेरियस स्टेक होल्डर्स इनेबलिंग द यूपीआई ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द पेयर एंड बेनिफिशियरी बैंक्स, द थर्ड पार्टी ऐप एंड द एनपीसीआई इनकर अ कॉस्ट ऑफ ₹2। लेकिन यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगाने वाली है। एमपीसीज गोयल फ्रीबीज नेवर फ्री। तो पार्टीज़ को यहाँ पर वोटर्स को पहले ही ट्रेड ऑफ बता देने चाहिए कि हम अगर आपको फ्री पावर सब्सिडीज़ दे रहे हैं तो हम एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो ये सब पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। तो फ्रीबीज आर नेवर फ्री एंड व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज ऑफर करती हैं ऐसी स्कीम्स तो यहाँ पर वोटर्स को ये भी बता देना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाले हैं। फ्रीबीज आर नेवर फ्री स्पेशली हार्मफुल और सब्सिडीज़, जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइजेस भी डिस्टॉर्ट होते हैं। नोटिंग दैट दिस हर्ट्स प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन सच एज द, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्री पावर सब्सिडीज़ दी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है। तो गोयल सेट सच फ्रीबीज कम एट द कॉस्ट ऑफ लो क्वालिटी हेल्थ, एजुकेशन, एयर एंड वाटर, जो कि यहाँ पर पुअर को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। यहाँ पर मेंशन है 197 कम्युनिकेशंस जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।